Good evening, friends. Most welcome. Sorry, friends. Today we will study. Today we will start with a new topic. So before going to new topic, I will just tell you something regarding some important stock, just like Maruti, which has come to our very strong support level on the weekly and the monthly charts. This is the weekly chart of Maruti Suzuki. Let me just show its monthly chart, how it looks. See friends, you could see here that the monthly chart, this stock has come to this very strong support level. Okay, now we have to wait and watch for any reversal sign. Once we get a reversal sign on daily or hourly charts, so we can take a fresh buying entry in this stock for a minimum target of the level from where it has fallen down. That is somewhere 9953 or so. Sorry, even it is, yeah, it has fallen from 10,000 level, friends. 10,000 level. Okay, so it would be a very good investment opportunity to enter in this stock freshly. Okay, maybe it shows some more correction downside, so there is another possibility that stock can go down to 8100 also, maybe somewhere. Okay, 8100, 8200, 8300 somewhere, because today it has fallen to 8500. Okay, so this is the monthly chart, friends. This is monthly chart of the stock, and let us check it once in weekly chart. Okay, so this is the weekly chart, friends. So this is the weekly chart. So friends, we have to keep a watch on such stocks. This is there can be no scanner like this that gives us that way we can buy this stock in this time. No, we have to keep few stocks, few big large large cap stocks in our watch, and we can add them in our watch list also. Just like I have few stocks in my watch list. So let me just show you. I have different stocks. I have there are 5 pages in this Zerodha Kite app. So we have 5 pages, and all my pages are full, and each page contains 40 stocks. So I'm keeping a what we can say monitor check on approximately 200 stocks, right? So we have to add some good stocks in our watch list. We need to add some mid cap and small cap stocks also, but there we should not put a large part of the money. We should not put there. Our maximum investment should be done in the large cap stocks, followed by mid cap, and then in the small cap stocks. 1 minute, there is one message. Okay, so GG says he is out, not able to join. Okay, maybe he is busy somewhere. Okay, so is this thing clear, friends? फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ रहा है ना जो मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे, अगर हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो हमारा जो है, एक तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम हमारे पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स होने चाहिए, कम से कम 5 स्टॉक, 5 स्टॉक्स कम से कम हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई 20 से ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं, हमें हमारे पास जो है 10-20 से ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि 50, 100, 200 कंपनी अपने पास रखी हैं और वो उनको ट्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू कीप अ चेक दैट वी शुड नॉट ऐड मोर देन maximum there should be 20 stocks, 20 or 30 maximum. We should not go above that, because otherwise our work will be will increase a lot. So we have to keep a that will create a lot of confusion for us, that we need to check them periodically, that it becomes very difficult to track. Okay, so for good investment, we need 5 to 10 stocks in our portfolio, and we can we keep on adding those stocks at every dip, but at intervals, not in one go. Okay, so we can start as SIP and keep on adding on every dip and every correction, some little correction we should add them. Okay, right, friends? So this is the right way of adding good stocks for long term investment. Okay, even for positional, someone wants for wherever, even if you want some to do some positional trades also.
just like for somewhere around 5 to 20% returns, sorry, 10 to 20% returns. So we should keep a watch on good companies, okay, and we should add anywhere we get a good opportunity. Just like Maruti Suzuki is, obviously it's at a very good opportunity level. Stock has come to that important level, right? So you could see here it has come to a very important level. 1 minute, I think no. Okay friends, so it has come to a very strong level where it can take a reversal from this level. Okay, so it has come to a very, we can say, important level friends. So it is a very good opportunity for investors to enter in this stock, but we don't have to enter immediately. We have to take some reversal sign. Any day it will give some reversal, so we can add this stock, right friends? Okay, so friends, you know, just like what I am telling you is actually the way the big players, FIs, DIs, okay, mutual fund houses, they all do in the way. Okay, so they look at stocks on the monthly and the weekly charts only for the entry, and for exit they use daily chart. Okay, they exit as per the daily chart, and they take an entry as per the monthly and the weekly charts. So wherever, just like see, stock has come to a very strong level. Okay, so there are you know, maximum chance for the stock to slip to somewhere around 8300 or so. Maybe it can fall down to that level also. Okay, right? But you know, it will surely reverse from any level. Okay, so any time, you know, any week or any day or where we get some you know, reversal in this stock, so it will likely to give us very good profit friends. Okay, so it depends upon, suppose it will reverse from this level of 85, so surely we can you know, enter in this stock for about 500 points, right? Because stock has fallen from this level friends. So surely there is nothing bad with the, you know, company. Everybody knows it's a good company actually. Okay, so we should you know, keep a watch on good gems. Okay, right? So just keep watch on these stocks. Just like you see, you know, big stocks, all big stocks, just like even IndusInd Bank, HDFC Bank, Kotak Bank, they all have shown, you know, correction. Okay, so now all these stocks are available at some good levels. So but we need some reversal signs. Okay, so we can enter these stocks in our portfolio on good reversals from the these, you know, strong support levels. Okay friends, so friends, let us start with today's topic. So today we'll start with the concept of trend lines, trend and trend lines. So trend is simply, friends, what is trend? Trend is simply the direction of the market. Okay, so look at this trend of the stock. This is a trending stock. Okay, this is a trending stock. Stock has taken a trend. Let me go back to see from what level it has taken a trend. So see friends, yeah, it's a monthly chart. I will go back. So see here friends, this stock has taken its, this is the first month candle. Okay, okay, so see friends, see for first month, you know, the company was listed in 2003 on July, in the July month. Okay, so see in July month, I will just show at this level. You can see the movement of the whole month. Okay, so this stock has opened at 164.90, made a high of 200. Okay, low of 155. Okay, that means approximately 15 rupees low. Sorry, 10 rupees, sir, because it is 164.90, so we can say 165. So it has made 10 rupees low from its open, and high was 200 and closed at 180.85. Okay, means in first very month it has given approximately, we can say, 15 rupees up move. Okay,
and see the journey onwards. See its journey onwards, how well it has done. From a start of 164, stock has made to 600 and it is 600 and 601 to somewhere. Okay, so it has given huge return, friends, multi-bagger returns. Its multi-bagger return, it has given more than five times. So any stock which gives more than 4 5 times of its price, so that is called a multi-bagger. So it has given multi-bagger returns. Okay, and see after that level, friends, look at this. Look at this level. What happened after this stock has given this much return? Okay, then there is a big fall also, because all those people, all those who have investors, those who have bought in this level, they have taken their profits, and stock fallen down in this 1 month only. Stock has fallen from it opened at 542, and high was 558.70, and low was 300, friends. It made a low, and you could see there is a shadow. There's a needle down below the body, and look at the closing price is 405. Okay, so it has given a big fall because of profit booking, friends. It's simply profit booking, nothing nothing negative, nothing other things. So simply what happened, we have to understand friends, we have to understand this thing, that one stock gives some good amount of move, so there are chances of profit booking. Even at this level there is some profit booking, and see at this level also there may be some profit booking also, little profit booking is also there, but this level is a major profit booking. Okay, because stock has given multi-bagger returns from its initial listing month. Okay, so it started from July 2003 and made a high in the month of April 2004. So we can say that even less than 1 year's time, with right, approximately in 9 months, friends. Within 9 months, stock has given multi-bagger returns. Okay, so simply when such stocks give such big movements, so there are high chances that there can be profit booking. So see what happened, profit booking came and stock came to this level. Okay, it given closing here, closed at fallen up to 300 level also, but closed this month's close was 405. Okay, and see then after there is the candle size are decreasing, they're smaller. Okay, there's still some profit booking, little profit booking also there. And see again stock, we can say, started up move. Okay, stock has again started up move, friends. Look at this level again. After this range was, stock remained in this range. We could say that stock remained in this range for quite some time, maybe 6 months or even 1 year maybe. Okay, and then it again, we can say, hold back to the same trend. Actually it continued the same uptrend. Okay, this time it made fresh high of 974.95, friends. Okay, right, but see the profit, same month the profit booking also happened in this level. But see the levels of initial listing, and see the all the previous support level. Let me take one line also. Yeah, friend, this is the listing time. So I will take these levels as, sorry, what happened? Yeah, I have to take a horizontal line. I will mark some major support level, friends. This is the opening level. Okay, then stock took support of this level. You could see here that stock took support of this level. Okay, it was the resistance level. It was the resistance level, and see it has crossed it. Okay, then it made fresh resistance at this level. This is fresh, and it took support of this level. Okay, it took support of this level. See how this support has worked. Once stock made to this level, made resistance here, and given some profit booking came, and again stock rose up to that level. But see again faced resistance and fallen slowly. Okay, this fall was for longer period, but slow. Again took support of that level. Look at this, again took support, and this time made fresh high of it is somewhere 1252 somewhere. It made a fresh high.
Then see the downward journey again it started downward journey, and see this time it broke first support friends. This time it broke this major support also, it broke that support also, but took support of this previous level. It took support of this level and again moved up. So friends, the concept of this support resistance are very important, especially on the higher time frame, as just like monthly, weekly. These levels are very, very important. So always try to catch stocks for investment purpose only on the reversal from major support levels, right friends? So don't forget this thing. This is a very important concept, right? See, after this fall it came to this level and took support of this major support level, okay, around 500. Okay, so from 500 it moved up to, this time it made to 1700 friends. So means again 3 times returns, more than 3 times returns. Okay, more than 3 times returns again. I will just make this chart a little smaller. Okay, see, from this again it made up we can say new resistance level. Okay, and after that resistance, see, there is a bullish engulf also. There is bullish engulf also on the monthly chart, and see the stock has fallen down to this level friends. Okay, it was already, we can say this was a resistance level. Okay, so it took support and then stock goes up. Okay, now see this, after this level is crossed 1700, stock made a very good up move. Look at this, it made a, we can say, fresh high of 4739 friends. From level of 1700 1800 somewhere, it made a, we can say, record high, multi-bagger returns. Okay, means approximately 4 times returns. Okay, 4 to 5 times returns. So multi-bagger returns are there. Then again some profit booking friends, then again some profit booking, again stock reversed from previous level. See, this time it took support of this level, it took support of this level. Okay, and started upward journey, made this time, see, it has made this level friends. So it has freshly made 10,000 somewhere, it has reversed from that level. Now it has high chances to give a reversal again from anywhere in this level. So keep a watch on this stock. So it will surely give us, any day we give us, okay, good confirmation on the daily chart. So we have to take some reversal signs where it will give us good reversal sign that good up move are started. Okay, so there we will enter the stock, and at least it would go to its previous resistance level from where it has slipped. Okay, so means approximately we should see it somewhere around, it would give us minimum 400-500 points movement. I am saying minimum, I am just talking of the just resistance level. It will go higher also. Just look at this, once this resistance was crossed, once this resistance was crossed, see, it has moved up to this level. Then this level is crossed, made some correction. After this level is crossed, see the movement. Okay, here it also faced some resistance. At this level also it faced some resistance. So friends, always remember that these levels on the monthly and the weekly charts are very, very important, and they are very good opportunities to enter in a stock, right friends? Got it? So friends, I am telling you about this trend. So trend is actually what? Trend is simply the direction of the market. Overall this stock is in the uptrend, we could say. If we look at the monthly chart, we could say that overall still the stock is in uptrend. Okay, but now let us go to weekly chart. On the weekly chart, how it looks. See how does it look on weekly chart. So we could say from this level it has given a, here the trend was up,
This is an uptrend, friends. This is an uptrend for the stock. Okay, it made this level. Okay, then the downtrend started. Okay, and see, after this downtrend is started in the stock, see the downtrend completed at this level. Downtrend started somewhere from this level. Okay, it completed here in this level. Okay, again started up move, again started some downtrend, sorry, upward trend, then little downward also. So friends, stocks keep on moving in, you know, stocks cannot go in one straight line. They always give some up and down movements, right? So trend is actually the direction of the market. So we should always try to find a trending stock. Okay, just like if we are doing in intraday. So for intraday, we should look at the overall trend of the stock, that how the stock is trending, whether it is trending, you know, in the weekly chart, monthly, weekly and daily charts also. Then we should, you know, we have to see some condition also. If we get a buying opportunity in that stock, so that would be a very good, you know, strategy to trade a stock and to make profit. So there are high chances the stock can go in the same direction. Just look at this portion, that stock was, you know, it is in uptrend, overall trend is up, but see at some level there is some corrections also. This is on weekly chart, there is some profit booking, little profit booking is also there. See, one stock rose, see, for 3 weeks stock made a high, for continuously for 3 weeks, after this level is crossed, for 3 weeks stock was uptrend, and 1 week stock made a downtrend, and other week it remained in this range. Here it was range bound. So there are 3 types of trend, friends: uptrend, downtrend and the range bound, or we could say that there is no trend actually. Range bound market is we can say there is no trend in the stock. Okay, untrending market. Okay, and most part of the time the stocks are in this uptrending market, that they are in range bound condition. See again, you know, it made some high, but see again some little, we can say little what we can say profit booking or something. See again, friends, from this level stock has made another move for 5 to 6 weeks, then for 3 to 4 weeks are again down. Okay, so stocks keep on, you can say, moving up and down, but we have to see the overall trend of the stock is up. So it is an uptrend in the overall trend. Overall trend is up for the stock. So try to find the trend. What is trend? Okay. So friends, I will remove this study. Just I have added these studies to make you understand that how we can make use of these studies also. So I will keep moving averages. Let us keep the moving averages. So I have just removed super trend. Right, friends? So now I will take, you know, let us remove these moving averages also, because they will create some confusion. I will remove all the moving averages. So let us keep the volume and RSI. So friends, I am about to give you the concept of trend and trend line. So how to, we can say, find out, or how to be, you know, how to find out that stock will continue in the same trend or not. So how can we do that? We can take the help of trend lines, because trend line is a concept that is used to, you know, find out the how long the trend will continue or trend will reverse. So for that we can take one simple, you know, line from here. So I will go in, you know, first of all I will go to this draw column. Okay, then I will go to this line, this level. Here there is an option of tools. So from tools I have already selected horizontal line. Okay, this time I will take a line, simple. You could see there is a line. Okay, we can just like, let me show how to select this thing. So we can keep these things up and down. So we can check what all shapes, what are studies, what all things are there. So I am from this I am taking a line, friends. Okay, so we can change the colors also if you want to change the color. So let us change its color to let us make it blue. Okay, friends, so how to find out that stock will remain in this you know, trend or not? So for that we can take the help of trend lines. Okay,
In this case we can take the help of trend line. So let me show our trend line, friends. So first of all, I will take, we have to, for making a trend line, we have to choose some bottom. We have to choose some bottom, and then we will connect it to latest price. Suppose stock is trending at this level. Okay. Suppose I am taking an example that stock is trading at this level, and we want whether the stock will continue in the same uptrend or not. So in that case, we will take a trend line in the, we can say, support in the below the chart. We will take a trend line below the chart. Okay, friends. So this is our trend line. So we have put a trend line here. So I am putting trend line on the weekly chart, and you could see here, friends, the stock was, it was moving up. Okay, many times it had touched this level but reversed, again touched this level, again reversed, again touched this level, again reversed. Okay, so suppose we are here and we want to know whether stock will continue that uptrend or not. So in this case, this trend line will be very helpful. This trend line will be very helpful in finding, sorry, let me just move, I want to move this trend line little below. So in this case, we want to find that whether the stock will continue in the same trend or not. So for that, we can make use of trend line. So trend line is nothing other than a support. It acts as a support. Okay, if stock is in uptrend and there is a down line below the chart, that acts as a support. Okay, so this is a support level, right, friends? So see here, suppose we are in this condition, we are here in this level. Okay, so we are not sure whether the stock will continue in the uptrend or not. So in this case, we will make a trend line. Okay, we have made a trend line, and you see, friends, try to make a trend line. I think my line has shifted a little. Yeah, somewhat shifting is there. Somewhat my trend line has shifted. Yeah, it is the right. Okay, friends. So this is a trend line, and you could see here that this trend line is, it is touching this, the chart is touching this trend line at one level first, then second, and then third. Okay, at third or fourth level, we can say third level, fourth level, stock has, it has moved down the trend line. So means now it has given us an indication that once stock has broken this line, there are chances that stock can go down. So this trend line will help us in being with the same trend, or we can say to find the direction of trend, and so that we can reverse our trades or we can take profit. So suppose we have entered anywhere in this level, this level, this level, somewhere anywhere in this level, or anywhere even at this level, friends. Suppose we have taken entry in this level freshly, looking at some condition. So if we are using this trend line, so this trend line is a support actually. Once that support is broken, so there are chances that stock can go down. Okay, now look at this level. It was the level it was a level, friends. It was the resistance level for the stock, but stock has not, which was now after it has crossed. So this level becomes a support. Okay, so there were chances that stock can take, reversal from this support, but stock has not taken reversal. You could see the candles. All the candles are red. Okay, so then there is another level, friends. Okay, this is the resistance level, and there is a support level of this very level. This is a support level. So stock has came to this level and took support. So I will shift this line above. See here, stock has taken support of this level. Okay, so it has taken support of this level and again, moved upside. Right, friends? So in this case also we can take one more trend line. I will take one more trend line, just like if we want to track this downward movement. Okay, we want to find that whether this downtrend is completed or not. So again we can take 1 minute. What happened? Okay.
Okay friends, so simply we can make a trend line like this. Okay, and see, once stock has gone other side of this trend line, that stock has it has started upward journey, we can say. And see friend, there is one condition also, that these both there is a reversal candle. Actually there is a very big reversal candle, that the size of both the candles are almost equal. So this is a kind of Marubozu. Yeah, it seems to be like a Marubozu, okay, which is a reversal candle in the down, because after red there is a green candle of almost equal size, and their bottoms are almost equal, friends, right? So this is a reversal candle, so we should wait for some reversal candle formation. Okay, once we get a confirmed reversal candle, there are high chances that stock can reverse. So here we can take entry above this level, and this next level we can take an entry keeping stop loss at this level. So this level stop loss comes to be 3410, and we have taken entry above in this candle. Okay, 3780 somewhere in this candle actually, especially above the previous level high. So suppose we have taken entry above 3772, 3778 somewhere we have taken entry. Okay, see here friends, from that level stock has given a very good upward move. You could see here that stock is rising up in steps. Okay, so whenever stocks go in downtrend, they do it in steps, and in the same way when the trend is reversed, the stock keeps moving in the it is rising the stairs, we can say. This time it is rising the stairs. Already it was it was coming down the stairs. Okay, so we have, हाँ सर, जी सर बोलिए, जी बोलिए, जी 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 सर। सर हाँ, ये थोड़ा सा मेरा ये एक्चुअली पता है इसको हमने कैसे करना है, जो हम जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाएगा ना, तो उसको हमने हाइज को कनेक्ट करना है। डाउन ट्रेंड की जो लाइन होती है वो हमें क्या करना है, उसको ऊपर, सॉरी ये कहाँ चलेगी, ये मैं एक बार दोबारा करता हूँ क्योंकि ये लाइन कुछ सही नहीं बनी, और थोड़ा वीकली चार्ट पे ना, तो वीकली चार्ट पे थोड़ा बड़ा लेवल आ रहा है। ओके मैं उस लाइन को पिछले, हाँ, देखो हमेशा जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ना, तो वो हमें करंट लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो करंट लेवल सपोज करते हैं हम यहाँ पे थे, सपोज जैसे स्टॉक काफ़ी गिर गया, ठीक है, तो हम सपोज इस डे पे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पिछले को कनेक्ट करेंगे, लेटेस्ट से पीछे को कनेक्ट करना उसको, हमेशा ये चीज़ करनी है, और कोशिश करनी कि उसमें मैक्सिमम पॉइंट से वो टच हो जाए। देखो जैसे ये छोटा सा फॉल हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं छोटा सा ही फॉल है, क्योंकि वीकली चार्ट हम देख रहे हैं ना, इसमें हमें छोटा लग रहा है, ठीक है, वीकली चार्ट में छोटा सा लग रहा है क्योंकि देखो इसमें हमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन, समझो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। और ये जब स्टॉक उसके, सॉरी ये क्या हो गया, आई थिंक मैंने अदर लाइन ले ली, हाँ, तो जब ये स्टॉक उसके अदर साइड चला गया ना, देखो जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली हमने इस लेवल से, देखो जब स्टॉक फॉल हो चुका है, ठीक है, अब जब फॉल हो रहा है उस टाइम पे ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा। ट्रेंड लाइन तब हम लेंगे जब स्टॉक का क्या होगा, कोई लेवल उसमें दिखेगा, जैसे मान लो इसने कोई लेवल, जैसे ये हाई बना लिया कुछ, ठीक है, और हम वहां से उसको खींच सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि हमें इस केस में डाउन ट्रेंड में हमने हाइज को कनेक्ट करना है, और क्या बोलते हैं अप ट्रेंड में हमने लोज को कनेक्ट करना है। देखो जैसे सपोज हम यहाँ पे इस सिचुएशन पे, मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखाता हूँ, जैसे हम इस लेवल पे सपोज, तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को इस लेवल से कनेक्ट करेंगे। सपोज हम इस लेवल पे हैं, हम इस लेवल को क्या करेंगे, एक बार मैं ट्रेंड लाइन लेके दिखाऊंगा। हम अगर मान लो इस लेवल पे, हम कहीं इधर हैं, ठीक है, हमारा स्टॉक कहीं यहीं पे, ठीक है, तो अगर हमने अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा तो हम इसको क्या करेंगे, लेटेस्ट लेवल को इस लेवल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और हमें ध्यान ये रखना है कि उसमें हमारा क्या हो, यानी कि हम जब ऐसा करेंगे, एक्चुअली ये जो है, रुको ये थोड़ा सा, अब एक्चुअली वीक, एक मिनट इसको मैं दोबारा लिख लूँगा,
यानी कि इस केस में एक तो हमारा चार्ट थोड़ा सा वीकली पे है ना, देखो जैसे हम मान लो क्या करेंगे, मतलब इस लेवल को जैसे मैं सपोज मैं कह रहा हूँ हम यहाँ पे हैं, तो हम इस लेवल को इस लेवल से कनेक्ट कर देंगे, इस लेवल को इस लेवल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमें पिछला कोई लेवल देखना होगा जहाँ पे कोई हाई पे है या लो पे है, ठीक है, वहाँ से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। हम वहाँ से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे और हम किसी लेटेस्ट लेवल तक उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो ये यहाँ से भी क्या हो गया, ऊपर रिवर्स आके देखो, यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया, ठीक है, ओके। तो अब इतना ऊपर स्टॉक आ गया, तो उस केस में फिर हमें ट्रेंड लाइन को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जैसे अगर ये लेवल पे हमने इस लेवल की एंट्री के लिए लिया था, मैं एक बार फिर से इसको रीडू करता हूँ। जैसे मान लो हमने इस लेवल पे हम इसको एंट्री के लिए ले लिया, ठीक है, एक बार स्टॉक यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, बहुत दूर हो गया, तो हमें इस केस में अब क्या करना होगा, हमें इस लेवल को लेटेस्ट लेवल से कनेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक और लेवल लेके तो चलता हूँ, सपोज हम इस लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है, तो हम इस लेटेस्ट लेवल को कनेक्ट करेंगे इस पिछले लेवल के साथ, ठीक है, ताकि हमारा जो अदरवाइज हमने जो एंट्री यहाँ पे ली है, ठीक है, हम अब हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, और सॉरी ये तो सब हिल रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, मतलब जैसे हम सपोज यहाँ पर हैं, हमने मान लो पहली एंट्री इसमें ले लिया, हमने हमारी एंट्री यहाँ पे, स्टॉक हमारा इधर ऊपर चला गया, ठीक है। हाँ सर कोई लेटेस्ट बताते हैं, चलो एंड में दिखाते हैं। अभी तो जैसे इसका तो स्टॉक का, अब इसमें ट्रेंड लाइन के लिए हमारे पास कोई ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रेंडिंग। तो ये जैसे मान लो चलो हम इसी लेवल को कनेक्ट करके देखते हैं, इसी लेवल को, जैसे अभी मारुति सुजुकी में कह रहा हूँ कि एक अच्छे लेवल पे आ गया है, तो हम इसका लेटेस्ट लेवल हमको देखेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे पिछले लेवल के साथ। तो जैसे हमारे पास एक अच्छा लेवल ये निकल के आ रहा है, ठीक है, ये लेवल निकल के आ रहा है, इस लाइन को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। तो अभी अगर मान लो ये स्टॉक जैसे मान लो यहाँ पे है, अगर इसको लेके ये रिवर्स हो जाता है, सपोज अगर मान लो इसी ट्रेंड लाइन को छू के ये वापस ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, अब इसको सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो मतलब अभी ये सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और गिर सकता है, तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम सेल भी कर सकते हैं। तो हाँ अभी देखो मतलब हर जगह देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, देखो क्या है, जैसे मान लो इस सिचुएशन पे तो अभी ये फॉल हो रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कहीं से रिवर्सल देगा, लेकिन ये कब देगा वो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ क्लियर कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें बहुत सारी लाइन ले सकते हैं, देखो जैसे हमने एक लाइन यहाँ से ली है ना, हम दूसरी किसी और साइड से ले सकते हैं, हम उसी पॉइंट को लेके, या मान लो हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे, हम इस लेवल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, हम जैसे इस लेवल को भी ले सकते थे। मान लो जैसे हम इस स्टॉक में ट्रेड करने वाले होते और हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली होती, सपोज जैसे मान लो पिछले सेशन में हमने कहीं पे एक दो दिन सॉरी ये वीक एक्चुअली ये वीकली चार्ट है ना, मान लो हम एक वीक पहले देख रहे होते हैं इसको, तो हमारी ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे होती, ठीक है, इस लाइन को जोड़ के, ठीक है, तो ये लेवल तोड़ने के बाद श्योरली हमको इसको बेचना होता स्टॉक को, ठीक है, क्योंकि देखो इसने ये देखो यहाँ पे ये लेवल से पहले स्टॉक मूव हुआ है, ऊपर मूव हुआ है, यहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा अप मूव दिया है, और ये लेवल जब स्टॉक यहाँ आ गया तो स्टॉक ने जैसे ये लेवल तोड़ दिया, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी के और नीचे जाएगा, तो देखो जैसे अगर किसने सेल किया तो यहाँ से वो प्रॉफिट लेके निकल सकता है। या जैसे मान लो हम इस लेवल को इस लेटेस्ट लेवल को मान लो हम कनेक्ट करते इधर कहीं पे, जैसे स्टॉक यहाँ पे आ गया, तो हम इसको, ठीक है, हम इस लेवल को लेके हम इसको, ठीक है, तो देखो जैसे स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक है, ऐसे। या जैसे देखो ये लेवल है, हम इस लेवल को कनेक्ट करेंगे किससे, ये लेवल से, ये लेवल पे मैंने कनेक्ट कर दिया और स्टॉक ऊपर चला गया वहां से, तो हम थोड़ा यहाँ से बाइंग कर सकते थे, ऐसे करके हम मल्टीपल जो है लाइन ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारी लाइंस ले सकते हैं।
और ट्रेंड लाइन जब भी लेना है ना, देखो इस हाँ वो ज्यादा अच्छा है। उस जो जो ये क्या ना क्या बोलते हैं वो नहीं, ट्रेंड लाइन का पता क्या होता है, देखो ट्रेंड लाइन सही होने का तरीका क्या है। ट्रेंड लाइन जो है ना, मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या 3 लेवल को अगर ये छूता है, 2 से 3 लेवल को टच करके निकलता है, वो हमारा सही ट्रेंड लाइन बनता है। देखो जैसे मैं आपको इसका जो सही ट्रेंड लाइन बताऊंगा, यहाँ से मतलब यहाँ से अगर हम ले रहे हैं, उसमें एक लेवल हम ये कंसिडर करेंगे, कौन सा, एक ये लेवल कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से हम ले रहे हैं इसको, इस लो से हम देखो यहाँ स्टॉक पीछे कहीं लो में था, कहीं फॉल हो रहा था, यहाँ से एक लो बनाया था, ठीक है, हम इस लेवल से इसको खींचेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम लेवल्स को छूना। देखो जैसे यहाँ पे एक लेवल को छुआ इसने, ठीक है, ओके, तो इसके हिसाब से ये ट्रेंड लाइन जो है ना, जैसे अभी ये एक हमारे पास एक देखो ये बीच में एक डिप आया था, वहां से स्टॉक फिर ऊपर राइज हुआ है, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है ना हम किस लेवल पे देख रहे हैं उसको। देखो जैसे हम ऐसे लेवल पे देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से एक बार कहीं पे फॉल, देखो मैं थोड़ा सा पीछे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे दिखाऊंगा आपको कि स्टॉक देखो यहाँ पे किसी लेवल से फॉल हुआ था, यहाँ पे आया, मतलब इसने कोई लो बना लिया और वहां से स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, फिर ये थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर इसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसने काफी अप मूव किया है, और अब हम लेटेस्ट पे, क्योंकि हमें तो लेटेस्ट से मतलब है ना, हमें इससे मतलब नहीं है, ये चीज जो होगी ये चली गई, ठीक है, तो हम लेटेस्ट से कनेक्ट करेंगे। अगर हम ट्रेंड लाइन ऐसे करेंगे तो वो मतलब हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अभी हम लेटेस्ट लेवल पे हम इसको देखेंगे, ठीक है, हम लेटेस्ट लेवल पे इसको देखेंगे। और एक चीज हमने और ध्यान रखनी है कि ट्रेंड लाइन तब इफेक्टिव है जब इसमें मिनिमम जो है ना 3 लेवल्स को ये टच करता है, जहां से इसने रिवर्स किया हो, ठीक है। कितने लेवल चाहिए, कम से कम 3 लेवल। 2 लेवल वाला ट्रेंड लाइन है ना, 2 लेवल का वो मतलब कि वो अगर रिवर्सल देता है वहां से, ठीक है, यानी कि ट्रेंड लाइन को छूने के बाद वो ऊपर जाता है, तो वो मतलब उसको हम रिलायबल मानेंगे। बट अदरवाइज देखो जैसे हम यहाँ पे इस सिचुएशन पे, मारुति सुजुकी में हम इस लेवल पे इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब हमारे पास हमने ये एक लेवल पास्ट में जो लेवल अच्छा लेवल था, हमने इस लेवल को देखो जैसे यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से डिप दिया, तो ये 2 लेवल को हमने कनेक्ट कर दिया। और अभी ये कहाँ पे जाके मिल रही है ट्रेंड लाइन, यहाँ से यहाँ मतलब आ रही है, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल लेता है या और नीचे गिरता है। तो अगर ये नीचे गिरता है तो मतलब श्योरली और गिर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कुछ पॉइंट्स हमें वो सेल देगा, लेकिन श्योरली देगा वो, ठीक है। बात समझ आ रही सर? मैं आप किसी और स्टॉक में दिखाता हूं आपको। ट्रेंड लाइन में आपको क्या है, अगर हम जितने ज्यादा पॉइंट्स हमें वो उसको टच करेगा, किसको, चार्ट को, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद स्टॉक जितनी मैक्सिमम बार वो रिवर्सल होता है, तो वो ट्रेंड लाइन उतना इफेक्टिव है। सही ट्रेंड लाइन होता है कि उसका वो 3 पॉइंट्स पे ना उसको टच होना चाहिए, 3 पॉइंट्स पे मिनिमम टच होना चाहिए, और देन हमारा ट्रेंड लाइन काफी इफेक्टिव हो जाता है। देखो जैसे मैं रेमेंड में बताऊंगा, हम यहाँ चले गए ड्रॉ में, और हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, हम सिलेक्ट करके लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लैक लाइन ले रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ से ट्रेंड लाइन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन को हमें क्या करना है, मतलब देखो जैसे हमें एक लेवल ये है, ठीक है, एक लेवल से हमने स्टार्ट कर दिया, ये दूसरा लेवल आ रहा है, और ये, तो ऐसे करके हमारा ट्रेंड लाइन आ रहा है। सॉरी, ये यहां से थोड़ा डाउन होना चाहिए, ये। सो आप देखो स्टॉक जैसे एक बार कहीं पे पिछले लेवल से राइज हुआ, यहाँ राइज होके यहाँ स्टॉक आया, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम इसने एक लेवल को छुआ, मतलब कि समझो ये हमारा लो हो गया। यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हम इसमें एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टॉक ऊपर गया ये कुछ रेंज में, और फिर थोड़ा सा डिप आके इधर लेवल बनाया, ठीक है। तो हमें एक लो लेवल ये मिल गया, और हमें एक लेवल मान लो हमें एक लेवल ये भी मिल चुका है, ठीक है, सपोज। तो हमने इन लेवल को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ से स्टॉक क्या हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, सेल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर से स्टॉक ऊपर गया, ठीक है, राइट। अब स्टॉक इस लेवल को ब्रेक होने के बाद स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ठीक है।
तो ऐसे करके मतलब ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है ये रिलायबल ट्रेंड लाइन बन गया। अब हमने मान लो इसको देखो, अब इस स्टॉक को मान लो अब यहाँ से देखो स्टॉक डाउन गिर रहा है, हम इसको इस हाई लेवल को कनेक्ट करेंगे। अब देखो इसने एक मतलब इसने देखो क्या नॉर्मल तो ये एक सिंगल डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है ना आपको, एक ऊपर को इसने मूव दिया है, तो हम इस ऊपर वाले मूव को हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है, ये एक लेवल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि स्टॉक इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाता है या नीचे जाता है, क्योंकि देखो अब ये तो अब लेटेस्ट सिचुएशन हम देख रहे हैं, ये हम लेटेस्ट सिचुएशन देख रहे हैं कि अगर स्टॉक जो है इस लाइन को छोड़ के और भी नीचे जाता है, ठीक है, तो दोबारा अगर कभी उस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो फिर हम वहां पर क्या होंगे, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वहां से हम इसको शॉर्ट करके मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। या मान लो इसी ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस होके चला जाएगा, अदर साइड जब क्रॉस होके चला जाएगा ना, तो वहां उसके ऊपर फिर हम इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन हम ये वीकली चार्ट देख रहे तो हम इसको मतलब उसके हिसाब से एक कैंडल हमारे पास जब अदर साइड में बनेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको तब बाई कर लेंगे। तो ये जैसे आप डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट के हिसाब से हम उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, जब हमें देखा कि वो बिल्कुल कंफर्म अब वो उस साइड चला गया, वो साइड नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको बाई कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन सिंपली मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है ना स्टॉक, तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। और ट्रेंड लाइन रिलायबल तब बनता है जब वो क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो पॉइंट्स को टच करता है। जैसे मिनिमम वो अगर सही रिलायबल जो ट्रेंड लाइन है वो 3 पॉइंट्स को टच होना चाहिए। कितने पॉइंट्स को टच होना चाहिए? 3। मैं पीछे जाके किसी और लेवल पे देखता हूँ। और ये पता है, ये जैसे हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं तो वीकली चार्ट के लेवल बड़े होंगे, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो हो सकता है हमें बीच में भी कोई लेवल मिल जाएगा, ठीक है, बीच में भी कोई हमें पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जैसे इस लेवल में देखो आप, नहीं ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो, जैसे सपोज कर लो हम यहाँ पे सपोज कर लो ये स्टॉक फॉल हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम लेते हैं। अगर हम देखो जैसे वीकली के हिसाब से कर रहे हैं ना, जैसे मान लो आप इसी लेवल को देख के चलो, इसी लेवल के देख के आप चलो, जैसे स्टॉक यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ से स्टॉक ने देखो इसमें सही पॉइंट हमें ये मिला है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा लेवल पे क्या हुआ, एक ऊपर को इसने मूव किया लेकिन उस लेवल को तोड़ के फिर से स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिलायबल पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया ना। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट से स्टॉक ने लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इस टाइम पे स्टॉक ने लाइन को ब्रेक कर दिया, मतलब अब ये ट्रेंड लाइन रिवर्सल हो गया। क्या हो गया? अब स्टॉक ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा लाइन मतलब मेरा दूर बना आई थी, हाँ ये कुछ तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब स्टॉक एक बार यहाँ, ये तो यहाँ से फॉल हुआ ना, सॉरी यहाँ से एक बार फॉल होना शुरू हो गया, नीचे फॉल होते होते एक बार स्टॉक कहीं से रिवर्स हुआ और ऊपर उसके लिए आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर नहीं हुआ, यहाँ से फिर से नीचे गया, तो ये लेवल हमारे पास एक अच्छा पॉइंट हो गया कि हम उस लेवल को पिछले लेवल से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक फिर से उसके नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें वेट होगा थर्ड टाइम ये इसके अगर इसको टच करके नीचे जाता है तो यहाँ पे हम फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन देखो ये यहाँ से इधर साइड चला गया, अदर साइड चला गया ना, क्रॉस होके चला गया, तो ये मतलब हमारा अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया। तो वीकली चार्ट पे हुआ तो मतलब ये आपको एक अच्छा, क्योंकि देखो वीकली चार्ट मतलब देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो ट्रेंड उतना ही बड़ा कंटिन्यूएशन हो सकता है उसका। तो ट्रेंड लाइन रिवर्स हुआ है तो उसके बाद देखो स्टॉक में काफी अच्छा मूव भी हुआ, ठीक है। ये चीज हम मतलब 5 मिनट से लेके मतलब 15 मिनट से लेके मंथली डेली चार्ट वगैरह, मंथली पे वैसे ये आई थिंक इतना सही नहीं बनेगा। एक बार मंथली पे अगर हम देखेंगे ना, मंथली में कैंडल्स ही कम होगी, ठीक है। एक बार मंथली में चेक करके देखते हैं। ये मंथली में कुछ ऐसा दिख रहा है।
मतलब मंथली में भी चल जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जितने बड़े आप टाइम फ्रेम में आप कर रहे हैं, देखो जैसे इस टाइम लेवल से हुआ तो कितने फिर वो ऊपर चला गया स्टॉक, ठीक है। तो मतलब आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में लोगे उतना ही वो रिलायबल ट्रेंड होगा। ट्रेंड का मतलब है, ट्रेंड लाइन का मतलब है कि स्टॉक सेम डायरेक्शन में रहेगा या नहीं रहेगा। किसी भी देखो स्टॉक मोस्टली क्या होता है, मतलब रेंज मोड रहते हैं, स्टॉक्स मोस्टली रेंज मोड रहते हैं। देखो जैसे इस पोर्शन में एक किस्म का रेंज है, ये कोई बहुत बड़ा लेवल, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है स्टॉक का, एक छोटी सी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था इधर से, ठीक है। तो रेंज मोड, अब रेंज मोड कंडीशन के बाद देखो जैसे स्टॉक ने ना क्या हुआ, इसमें हम डिफरेंट टाइम के ना क्या डिफरेंट टाइप के ट्रेंड लाइन ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, वर्टिकल, मतलब ऐसे करके, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये कोई डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, इस लेवल को छू के इस लेवल को, ठीक है। तो ये देखो स्टॉक ने इधर से इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ये भी हम कह सकते हैं कि एक चैनल को ब्रेक किया इसने, एक जो रेंज बाउंड चैनल चल रही थी उसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक अप मूव दे दिया इसने, ठीक है। तो मतलब ऐसे हम मल्टीपल चीजों को देख के हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि ट्रेंड लाइन जो है, मतलब 2 पॉइंट्स तो समझो हमारे लिए क्या, वो तो जस्ट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए रिलायबल होगा, नहीं हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वो हमारे पास क्या, अगर वो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को टच करके जाता तो वो बहुत अच्छा रिलायबल लेवल बन जाता है उसके लिए। देखो जैसे अभी सिचुएशन में ना, अभी सिचुएशन में है स्टॉक, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये स्टॉक जो इस ट्रेंड लाइन को, मतलब क्या, मतलब जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के क्या होगा, मतलब मान लो ये तोड़ के अगर ऊपर निकल जाएगा सपोज, तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट होगा और डेली चार्ट पे होगा, ठीक है। अभी देखो स्टॉक जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा नीचे गिरा फिर ऊपर राइज हुआ, ठीक है, फिर नीचे गिरा फिर ऊपर गया, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, ठीक है। मतलब एक अगर हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इस लेवल पे भी ला के देखें, एक मिनट, तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी हमारी, समझो हम इसको अगर हम इस लेवल पे भी ऐसे चेक करके देखें ना, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा इसने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इस लेवल पे जैसे हैं, तो हमारे पास ये डेली चार्ट के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है, ठीक है। देखो स्टॉक ने एक बार इस लेवल को छुआ है ना, मतलब इसने काफ़ी कोशिश की है कि ये स्टॉक इस साइड, मतलब कि ऊपर अपना जो है ना रिवर्सल शो करे, ठीक है, राइट, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा इसमें फॉल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो, आप देखो इसका पिछले एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये स्टॉक यहाँ पे गिरा, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, अब इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, तो अब हम इसको मतलब इस तरीके से भी एक हम समझो एक ट्राइंगल बना के भी इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बना के मैं उसको ट्रेड कर सकते हैं कि जब ये स्टॉक जो है हो सकता है इस क्या बोलते हैं, इस ट्राइंगल को ब्रेक करके और भी नीचे चला जाए, हो सकता है स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके और भी नीचे चला जाए, तो हम उसको फिर मतलब श्योरली हम इसको सेल कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, ओके। सो अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ के अगर इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो ये अच्छे मूव के लिए मतलब अच्छा एक अपवर्ड मूव दे सकता है। तो हमें इसमें मतलब कोई मेजर लेवल ढूंढना है, देखो जैसे एक बड़ा मेजर लेवल आ गया जहां से स्टॉक राइज करने की कोशिश की, लेकिन अब इसके बाद फिर गिरा है, ठीक है, ओके। तो यहां से मतलब हम अगर मान लो सेम थिंग ऐसे थर्ड टाइम और होती है, कहीं पे थर्ड टाइम ऐसे होता है, तो हमें फिर उसको फिर से सेल कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये जो डाउन ट्रेंड में जो लाइन है ना, ये हो गया इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और जो अप ट्रेंड में लाइन होती है वो सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट के पास स्टॉक क्या होता है, फिर से राइज होता है, और रेजिस्टेंस के पास स्टॉक क्या होता है, फिर से रिवर्स होता है।
ठीक है। तो ट्रेंड फाइंड के लिए हम लोग डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखो जैसे ये बहुत अच्छा जो मैंने पहले ड्रॉ किया था ना, आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये इस लेवल पे देखो 1 बार 2 बार 3 बार टच होने के बाद स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। तो हमें जनरली पहले दूसरे लेवल पे हमें एंट्री नहीं, पहला लेवल तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे लेवल पे हम कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। अगर तीसरे लेवल से वो रिवर्स होता तो वहाँ पे हम बाइंग ले सकते हैं, थर्ड लेवल के ऊपर हम बाइंग एंट्री ले सकते हैं। ट्रेंड हाँ, ट्रेंड लाइन को छोड़ के जब वो एक साइड चला जाए ना, तो फिर हमें वहां पे, जैसे मान लो यहाँ पे स्टॉक आया, थोड़ा सा ये डिप भी हुआ इस दिन, एक मिनट, थोड़ा सा देखो इसने एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगले लेवल पे हम इस लेवल पे देखो, जैसे इस लेवल के बाद हम इसको बाई कर लेते हैं, ठीक है। इस लेवल पे हम इसको बाई करते हैं, या अगर हम इस लेवल के ऊपर भी बाई करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस जो है पिछला कोई लेवल आना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे पिछला कोई लेवल है ना, देखो जैसे ये लेवल था पिछला, तो इस लेवल को हम स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई कर सकते थे जब ट्रेंड लाइन को जाने छोड़ने के बाद ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो इस लेवल पे, और हाँ एक चीज और है, हमें वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम कोई भी ब्रेकआउट देख रहे हैं तो वॉल्यूम का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर अच्छा वॉल्यूम है उसका, देखो जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो ये हम मान सकते हैं कि आप स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ सकती है ऊपर को। वॉल्यूम का भी जरूर देखना, ठीक है। देखो नॉर्मल वॉल्यूम था, कम था, मगर रेड और ग्रीन लाइंस का ना साइज यहाँ तक ऑलमोस्ट इक्वल था, रेड और ग्रीन लाइंस का। नहीं, वो अलग बात है सर। देखो जैसे यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन के पास आया है थर्ड टाइम, डेली चार्ट में आप देख रहे हो ना, थर्ड टाइम ये स्टॉक, ये देखो फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, ऊपर गया, स्टॉक यहाँ पे फॉल होके यहाँ आ गया, ट्रेंड लाइन के पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का आप देखो इस लेवल पे उसका वॉल्यूम कम था, अगले पे भी कम था, अगले पे भी कम था, यहाँ पर भी कम था। यहाँ स्टॉक जो है यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, मतलब एक किस्म का इसने ये इस लेवल पे हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस जो है इस लेवल पे होना चाहिए, कहाँ पर, इस लेवल पे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है डेली चार्ट में, ठीक है। हाँ जैसे आपने कहा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी आ सकती है, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा लेवल अभी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, और हम अगर हमने इसमें यहाँ पर भी बाई किया है तो हमारा स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 715 का स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं, और हाँ ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है क्योंकि डेली चार्ट पे देख रहे हैं, डेली चार्ट के लेवल बड़ा होगा, जो भी हम लेवल देख रहे हैं उसके हिसाब से लेवल बड़ा ही होगा, ठीक है। हमें एक बड़ा लेवल मिलेगा। अब देखो यहाँ इस लेवल के, इस वॉल्यूम के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है 2 दिन, बल्कि 4 दिन स्टॉक उसी रेंज में रहा है, ठीक है। फिर इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो गया। मैं आपको किसी और स्टॉक में दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे मान लो हम कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, ग्यूबिक बायोसाइंस देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 और तीसरा लेवल दिखाई दे रहा है। ये इसमें मतलब कि अच्छे लेवल बने हुए हैं, ठीक है। एक देखो यहाँ लेवल से स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, और फिर ये स्टॉक इधर आ गया। तो हमारे पास जो लेटेस्ट प्राइस ये है ना, इसको हम इन तीनों से जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक जो है किस टाइप का ब्रेकआउट देता है, किस साइड का ये ब्रेकआउट देगा, उसके हिसाब से हम इसमें एंट्री करेंगे। हाँ बिल्कुल,
हम थोड़ा इसमें वेट कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा जब भी हम वो लेंगे ना, मतलब हम थोड़ा सा इसमें कंडीशन भी देखेंगे कोई ऐसा, मतलब सीधी बात है जब वो उसको जाके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे, एक मिनट देखो, जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। ये हम डेली चार्ट पे देखो, स्टॉक एक बार यहाँ किसी लेवल से आ गई, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से फॉल नहीं हुआ, यहाँ से रिवर्सल किया, ये आ गया, दूसरी बार यहाँ आ गया, ठीक है, तीसरी बार ये ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अब स्टॉक यहाँ पे है ना, तो अब हम इसको, ये हमारा एक डेली चार्ट में एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ना क्या होगा, नीचे जाएगा, तो हम इसमें एक दिन का वेट कर सकते हैं। एक दिन का वेट हम करेंगे कि ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है। देखो जैसे इमीडिएटली हमें एंट्री नहीं करनी होगी, इमीडिएटली हमें एंट्री नहीं करनी, क्योंकि देखो हो सकता है स्टॉक एक ही दिन में थोड़ा सा नीचे जाए, जैसे देखो ये थोड़ा नीचे गया और फिर वापस भी आ गया, तो ऐसे हमें एंट्री नहीं करनी। हमें कैंडल को पूरा कंप्लीटली उस साइड देखना है। जब कैंडल उस साइड बनेगा तो ही हम उसके लेवल की हम उसकी एंट्री करेंगे। तो ही जाके हम उसको सेल करेंगे। देखो जैसे सेम कंडीशन जो मैं प्रेजेंट में दिखा रहा हूं ना, मतलब मान लो सेम कंडीशन यहां पे थी, ये देखो ये 3 लेवल्स, ये 3 लेवल बोल रहा हूं मैं, ये 3 लेवल को छू के स्टॉक नीचे चला गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग, जैसे देखो एक दिन ये चला गया तो हम अगले दिन इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक दिन का कैंडल पूरा कंप्लीटली उसके ट्रेंड लाइन के, मतलब मान लो अदर साइड पे चला गया, तो यहाँ पे हम सेल, अगले दिन हम सेल कर सकते थे इसको, स्टॉक को। हमारा स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि 140 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको, यहाँ पे हमारा 130 के आसपास कहीं पर भी हमारी सेल एंट्री हो सकती थी, ठीक है। ऐसी कंडीशन को देख के हम इसको ट्रेड करेंगे। और उसके बाद स्टॉक, जैसे मान लो हमने अगर 130 पे कहीं पे बेचा, सपोज 130 पे भी हमने बेचा हुआ है, ठीक है, तो स्टॉक जो है देखो इस लेवल के पास आया नहीं वापस, ये फाइनली यहाँ पे आ गया, ठीक है, 110 के पास आसपास कहीं पे आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमें अप्रोक्सीमेटली 20 रुपये मिल गए इसमें। तो छोटा स्टॉक है ना, 100 मतलब 120-30 की रेंज में है, तो इसमें इतना मतलब ये मेरे ख्याल से कितना बन जाता है, ये मेरे ख्याल से 10 पॉइंट से ज़्यादा, 10-15% ये क्या हो गया, फॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ना। एक मिनट को कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस आ गया, मान लो हमारा 20 रुपये का डिफरेंस आ गया। स्टॉक कहाँ से हमने सेल किया था, मतलब 130 पे हम इसको सेल कर रहे थे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 130 से, नहीं सॉरी मैंने गलती कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 15% रिटर्न दिया सर, 15% क्योंकि यहाँ पे हमने 130 पे बेचा था, ठीक है, और फाइनली हम सपोज यहाँ पे 110 पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हमारा 15% रिटर्न बन गया। हाँ सर, कहाँ पे इधर से, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल, हाँ ये सही है, हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि इसका देखो, हाँ उस, हाँ नहीं ये सही आपकी बात सही। देखो यहाँ पे एक तो एक चीज़ है ना, जैसे डेली चार्ट पे यहाँ पे एक लेवल भी दिख रहा था, इसका एक लेवल भी दिखाई दे रहा था जो कि सपोर्ट का लेवल हो सकता है,
तो वहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की ओर मूव करने लग गया। तो इस केस में हमारा जैसे स्टॉप लॉस है ना, हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके क्या कर सकते हैं, अगर हम उसमें बने रहना चाहते हैं तो हम स्टॉप लॉस, देखो स्टॉप लॉस में लगा नहीं सकते, पोजिशनल ट्रेड में हम स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते, लेकिन हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे कि हम अपने कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर आ गया तो हम निकल जाएंगे, उस तरीके से हमको ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, इसका ये ड्रॉबैक है क्योंकि इसमें पता नहीं चलेगा कि कब वो हमें जो है उसमें प्रॉफिट बुक करना। हाँ हाँ, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल निकलने की कोशिश करेंगे, सही है। तो इसमें पता है क्या, इसमें हम या तो हम अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। देखो एक चीज़ होती है, हम स्टॉप लॉस के साथ हम बने रहें, ठीक है। जैसे हमारा मान लो हमने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, तो यहाँ अगर हम उस लेवल का स्टॉप लॉस के साथ ही क्या करें, इसमें बने रहें, एक चीज़ हम वो कर सकते हैं। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम एक बार जब स्टॉप नीचे गया ना, तो उसके बाद अगर वो वापस आता है हमारी बाइंग लेवल, तो हम बाइंग लेवल का जो है इसको क्या करके स्टॉप लॉस लगा के, सॉरी बाइंग बोलो, जैसे ये सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग का लेवल को हम क्या करेंगे, मतलब हम ये देखेंगे अगर सेलिंग को हमारे लेवल को क्रॉस करके अगर रिवर्स हो जाता है तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। हाँ, इसमें ये चीज़ हो सकती है कि ये मतलब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रेंड लाइन को जैसे हमने इसको बेच तो दिया, लेकिन ये 2 दिन फिर ऊपर को भागा भी है, स्टॉक में ऊपर के लिए भी ये भागा हुआ है। तो इस केस में हम पता है कि हम अपना ये चीज़ रख लेंगे कि अगर हमारा वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तो हम उसको निकल के चलेंगे, ऐसे करना पड़ेगा उसको। अभी देखो जैसे स्टॉक है ना, ये आप देखो इस पे आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे देखो अब इसको ये इसने क्या कर लिया, मतलब कि 2 लेवल तो इसके बहुत अच्छे इस लेवल पे छुआ है इसको, ठीक है। तो तीसरे लेवल पे अभी स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से रिवर्स करता है या नीचे गिरता है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। अगर ये नीचे गिरता है तो मतलब हम इसमें से क्या होंगे, या इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। या मान लो अगर ये यहाँ से अगर रिवर्स करेगा ना, तो रिवर्सल के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। अगर ये यहाँ से स्टॉक इतना गिरने के बाद अगर ये रिवर्सल देगा ना, तो वो हमारी एक अच्छी बाइंग एंट्री हो सकती है। और हमारा स्टॉप लॉस हम इसी लेवल के पास रखेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे पिछले लेवल के, देखो जो ये लेवल है ना, इस लेवल के हम यहाँ पे रख लेंगे 121 का, और एंट्री हमारी कहीं यहाँ पर बन सकती है 123 है, 124 25 तक भी हम एंट्री कहीं पे ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट नहीं कर सकते सर आप, शॉर्ट हम कैश में शॉर्ट नहीं कर सकते, कैश मार्केट में शॉर्टिंग कैश सॉरी शॉर्ट हम फ्यूचर में कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऑप्शन ले सकते हैं उसका, पुट ऑप्शन। यानी कि ये हम हाँ देखो कैश में अब कभी भी, और हमेशा कैश में कभी आप सेल मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं जब नया था ना स्टॉक मार्केट में, तो मैं कई बार कैश में सेलिंग करता था, मुझे पता नहीं था क्या होता है उसमें, ठीक है। तो जब मेरा वो वापस आता था ना 2-4 दिन के बाद, मुझे वो वापस मिल जाता था, मेरे अकाउंट में आता था, वो सेल किया स्टॉक है वो खुद ही वो बेच देते थे उसको। तो वो मुझे मतलब अगर मैं प्रॉफिट में भी होता ना तो मुझे लॉस ही दिखता था उसका, मतलब जितना प्रॉफिट है उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखता था। तो मुझे वो समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है। तो मतलब वो बाद में काफ़ी देर के बाद मुझे पता चला कि भाई कैश में हम शॉर्ट नहीं कर सकते, उसमें क्या होता है काफ़ी हैवी वो चार्जेस लगा देते हैं, कैश में शॉर्टिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मतलब आप ये समझो कि हम इसको बाइंग करने के लिए, या अगर हम कोई फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर में हम उसको सेल करके रख सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस तो हमें रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस के पास हम रुक जाएंगे। मान लो अगर स्टॉक हमारी ओर आ रहा है, अगर जैसे देखो जैसे यहाँ से ये डिप हुआ, ये चला गया नीचे 111 तक चला गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, या तो हम प्रॉफिट बुक कर लें, छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी आ रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ला के हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में देखो ऐसा होता है ना, फ्यूचर में लॉट्स होते हैं, फ्यूचर में क्या होता है लॉट साइज होता है। जैसे मान लो कोई स्टॉक का मान लो कम से कम भी है, किसी का हो सकता है 50 का है, किसी का
100, 200, 300, 500, 1000, 2000 का, ठीक है। तो मतलब जितना भी होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, फिर उसका जितना बड़ा लॉट साइज होगा उतना उसका रिस्क भी बढ़ जाएगा। और छोटे स्टॉक जो है मतलब इनका क्या होता है, यानी कि जो स्टॉक 1000 के रेंज में है ना, उसका लॉट साइज 500, 600, 700 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज जो छोटे स्टॉक्स हैं तो उनका लॉट साइज बड़ा बड़ा होगा, वही है ना, स्टॉप लॉस बहुत हो जाएगा। तो हमें उस केस में क्या, स्टॉप लॉस को ना हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें उस केस में ये देखना होगा, जैसे देखो मान लो हमने यहाँ से किया, देखो ये तो यहाँ तक बिल्कुल सही किया, ये इस लेवल तक स्टॉक सही किया, ठीक है, लेकिन ये अब रिवर्सल भी इसने दिखा दिया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, या तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है, वो हमें क्या हो गया, उसको लेके निकल जाना चाहिए। देखो जो लोग फ्यूचर में करते हैं ना, फ्यूचर में हमें छोटा टारगेट लेकर निकल जाना चाहिए। फ्यूचर्स में हमें जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, जो सही फ्यूचर में ट्रेड करने का तरीका यही है कि छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट आ गया उसको लेके निकल जाओ। जब भी कुछ देखो जैसे रिवर्सल दिखना शुरू हो रहा है तो हमें इस दिन निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखो फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज होता है। अगर वो लॉस भी होगा तो बड़ा लॉस होगा, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लॉस भी बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में क्या है ना, लॉट साइज, हाँ उनका डिफरेंस होता है। हाँ, इंडेक्स में तो ज़्यादा होता है, इंडेक्स में तो 100 रुपये का भी डिफरेंस हो सकता है, 50-100 रुपये हो सकता है, जैसे निफ्टी बैंक। हाँ, उसका ना स्टडी करना मुश्किल है। हाँ, उसको स्टडी करना मुश्किल रहता है, उसको स्टडी करके हम डिसीजन नहीं ले सकते कोई। तो हमेशा हमें पता है, हमेशा जब भी हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, उसका हमें कैश का चार्ट देख के उसको समझना होगा कि कैश के चार्ट के हिसाब से हम उसको, देखो स्टॉक तो एक जैसा ही बिहेव करेगा ना, फ्यूचर में करे या कैश मार्केट में करे, बिहेवियर तो उसका एक ही होगा। अगर गिरेगा तो दोनों में गिरेगा, और अगर चढ़ेगा तो दोनों में चढ़ेगा, ठीक है। तो हमें उसका कैश का चार्ट देख के और उसके हिसाब से हम उसको फ्यूचर में जो है उसी लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ठीक है सर। फ्यूचर में एक चीज है, जी सर, हाँ ठीक है, हाँ नहीं वो हमें देखो फ्यूचर में हो सकता है वो लेवल आएगा नहीं ना, फ्यूचर में हमें उसी लेवल से लेना है। हाँ, हमने फ्यूचर में उसी लेवल के हिसाब से, हाँ, और हमें देखो जैसे हम आपने कहा एक 120 आपने बाइंग बोला ना, जैसे आपने कहा कि 120 पे बाई बन रहा है कैश के हिसाब से, ठीक है, और फ्यूचर में 124 बन रहा है। तो अगर कैश का स्टॉप लॉस आ रहा है कितना, मान लो हमने स्टॉप लॉस रख लिया 115 का, ठीक है, तो फ्यूचर का स्टॉप लॉस उसके हिसाब से 4 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा, मतलब उसके हिसाब से ना देखो, हाँ मतलब वो जैसे वो कितना आएगा फिर, वो आ जाएगा कोई 19 आ जाएगा, हाँ 19 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, देखो जो फ्यूचर का चार्ट होता है ना, वो तो छोटा चार्ट होता है, वो 1-2-3 महीने का चार्ट होता है मैक्सिमम फ्यूचर का। देखो फ्यूचर जो चलता है ना, देखो फ्यूचर का 2-3 महीने का चलता है ना फ्यूचर, तो उसका क्या होता है कि उसका चार्ट छोटा होता है, उसके हिसाब से थोड़ा डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो हमें मतलब कैश का चार्ट देख के हमें उसको लेवल स्टडी करके, क्योंकि देखो बिहेवियर तो एक जैसा होगा ना, स्टॉक्स का बिहेवियर तो एक जैसा ही होगा, चाहे वो फ्यूचर में हो या कैश मार्केट में हो, बिहेवियर एक जैसा होगा, सिर्फ ये होगा कि प्राइस का डिफरेंस होगा। तो हमें उस गैप को मतलब अकॉर्डिंगली चेक करके कितना गैप आ रहा है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है सर। और हमेशा देखो फ्यूचर में लॉट साइज होता है ना, तो फ्यूचर में हमेशा याद रखिए, क्योंकि लॉट साइज है तो मतलब वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बाइंग हो रही है, ठीक है, बाइंग या सेलिंग जो भी हो रही है लार्ज क्वांटिटी में हो रही है। तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस साइड तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस जो सही आ रहा है ना वो हमें रखना पड़ेगा। अगर हम गलत स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो जाए। तो हमें स्टॉप लॉस को प्रॉपर स्टडी करके कि कौन सा लेवल स्टॉप लॉस है, वो सही लेवल चूज करके स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन टारगेट साइड पे ना, जैसे स्टॉक पे देखो, जैसे अगर हम इसी एग्जांपल को देख के चलें,
कि हमारा टारगेट मतलब एकदम से स्टॉक ने कुछ हमें गेन दे दिया और वो रिवर्सल शो करना शुरू कर दिया उसने, तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। यानी कि हम अगर हम इस दिन नहीं तो हम नेक्स्ट डे हमें निकलना है, ठीक है, ठीक है, चाहे उसके बाद वो गिरा है डजेंट मैटर, लेकिन हमें पता है हमें हमारा जो प्रॉफिट आया है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है स्टॉक हमारा क्या है, जैसे प्रॉफिट दे के हो सकता है स्टॉप लॉस में ले जाए। बहुत बार ऐसे होता है, कई बार स्टॉक्स कहते हैं प्रॉफिट देते हैं लेकिन हम लोग उसको टाइमली प्रॉफिट को बुक नहीं करते और फाइनली हो सकता है हमारा वो स्टॉप लॉस ले जाए। तो कभी भी ये चीज़ नहीं करें, अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को जरूर बुक करना है, ठीक है। अगर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसको दोबारा क्या करेंगे, दोबारा मतलब उसको बाई या सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें एक बार उसको प्रॉफिट को लॉक करना है। तो मैंने ये चीज़ देखी, जो लोग, जो मैं फ्यूचर में कम ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो लोग फ्यूचर में जो सही ट्रेड करते हैं ना वो क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाते हैं, बल्कि वो बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं जहाँ पे मेजर लेवल है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट साइड वो छोटे छोटे टारगेट लेके निकल जाते हैं। मतलब वो आवाज़ आ रही सर आपको, प्रॉफिट साइड में वो 0.5 से मतलब 1% जो भी मिल जाता है वो लेके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब क्या है, वो स्टॉप लॉस भी लग चुका है लेकिन वो अपना एग्जिट नहीं कर रहे पोजीशन, ठीक है, तो उस केस में वो लोग काफ़ी पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में लॉट साइज है। अगर वो स्टॉक मतलब उनकी साइड पे नहीं गया तो मतलब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो वो क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट लॉस बुक करते ही नहीं है, तो बने रहते हैं कि भाई उनको लगता है कि और रिवर्स होगा, मतलब कि वो उनकी बाइंग साइड पे जाएगा जहाँ पर उन्होंने किया है, या सेलिंग साइड पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स वहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं, तो उसमें काफ़ी बड़ा क्या होता है, लॉस हो सकता है। तो फ्यूचर में यानी कि देखो, जैसे फ्यूचर और ऑप्शन में कुछ एक जैसा ही काम है, क्योंकि इनके लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज जहाँ पे बड़ा है मतलब वहाँ रिस्क बड़ा है, ऑब्वियसली रिवार्ड भी बड़ा है वहाँ पे, लेकिन रिस्क भी वहाँ पे बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा रिस्क है वहाँ पे क्या, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि वो जब एक्सपायरी होती है ना, ठीक है, स्पेशली जैसे ऑप्शन में होता है, तो ऑप्शन की एक्सपायरी है तो वो खत्म हो जाना, ठीक है, वो ऑप्शन ही जीरो हो जाना है, खत्म हो जाना है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी रहता है। इसलिए यानी फ्यूचर में या ऑप्शन में जब भी ट्रेड करना हो उसको मतलब ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, और हमें अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ना लॉस होता है ऑप्शन में। ऑप्शन का क्या होता है, प्रीमियम कम होता जाता है, वैल्यू कम होती जाती है, स्टॉक चाहे अच्छा भी कर रहा होगा, अगर वो थोड़ा ऊपर भी रहेगा लेकिन उसका प्रीमियम कम होता जाएगा, एक्सपायरी के पास वो प्रीमियम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब कि इतना कम हो जाएगा कि जो उसको मतलब क्या होगा, चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में ही क्यों रहेगा, अगर वो उसके ऊपर ही क्यों ना जा रहा होगा, लेकिन उसका जो है क्या है, ऑप्शन जो है उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा टाइम के साथ। तो टाइम के साथ उसको हम कहेंगे टाइम डिके बोलते हैं उसको, या थीटा फैक्ट बोलते हैं। वो चीज़ जो है उसकी वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो ना, मैं ऑप्शन बहुत कम में खेलता हूँ क्योंकि मैंने पहले बहुत ऑप्शन किया हुआ है लेकिन उसमें बहुत लॉस उठाया, ठीक है, ऑप्शन में बहुत लॉस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन जो है मैक्सिमम 2-3 दिन की होल्डिंग रखिए, और वो भी जब हम क्या है, जब हम एक्सपायरी से दूर है। अगर हम एक्सपायरी के बिल्कुल पास है तो वहाँ पे ऑप्शन को होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी न्यूज़ आ गया, ऊपर नीचे कोई भी अच्छी बुरी न्यूज़ आ गई, तो अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन जो है, अगर हमने मान लो कोई पुट ऑप्शन ले रखे और कोई अच्छी न्यूज़ आ गई और रिवर्स हो गया स्टॉक, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और सेम थिंग जैसे अगर कोई हमने क्या किया, कोई कॉल ऑप्शन बाई किया हुआ है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कुछ ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, तो ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज़, तो वो हमारा फॉल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक मैं दिखाता हूँ, एक मैंने कल एक स्टडी किया था, किसी ने ना एक ग्रुप में एक पूछा था, हाँ डॉक्टर रेड्डी का पूछा था उन्होंने, डॉक्टर रेड्डी का उन्होंने लिया था ऑप्शन, कह रहे थे कि उन्होंने किसी पेड ग्रुप के थ्रू लिया था, कोई पेड ग्रुप होगा, उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया होगा। ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज का ना उन्होंने क्या किया था, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना अभी 2650 सी इन्होंने ली थी, ये इन्होंने ली थी कल या परसों, कब ली थी आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कल में से इंक्वायरी की थी कि उन्होंने 90 पे इसको बाई किया था, समवेयर 90 के आसपास। मैं एक बार चार्ट खोल के देखता हूँ इसका, 90 के आसपास उन्होंने इसको बाई किया था। अब 90 देखो कहाँ है, मतलब इस दिन बाई किया था, कल ही बाई किया था, क्योंकि देखो 90 से ऊपर भी गया है,
107 गया था, तो 90 पे गया होगा, कुछ टारगेट दिया होगा, तो 107 भी गया। लेकिन आप ऑब्वियसली देखो छोटा सा तो उन्होंने लिया नहीं, प्रॉफिट तो लिया नहीं उन्होंने, ठीक है, उन्होंने होल्ड कर दिया। और सेम डे ये जो है कितना आ गया, कितने पे क्लोज, 66 पे क्लोज हो गया, 66 67 की क्लोजिंग दे दी इसने 90 पे, यानी कि उनको 30 रुपीज़ के आसपास समझो, 25-30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो उन्होंने इसको अगले दिन के लिए भी होल्ड कर लिया, ठीक है, ये सोचते हुए कि ये रिवर्स हो सकता है कल। लेकिन आज फिर देखो आज वो कितना गिरा, आज वो और गिर के आज वो क्लोजिंग दी है 45-46 की। तो ये है, अब 90 से मतलब उन्होंने अगर किया तो उनका सीधा सीधा उनका पैसा जो है हाफ हो गया, पूरा कैपिटल हाफ हो गया, जितना भी अमाउंट लगाया था 90 का 45 बन गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता है, काफी रिस्क रहता है। क्योंकि अभी देखो मार्केट, ओवरऑल मार्केट की हमें इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट की कंडीशन देखो, मार्केट सारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और ये उसका कॉल ऑप्शन लेके बैठे, तो कॉल ऑप्शन मतलब लेना है कि मतलब ये बहुत रिस्की हो सकता है। अगर इसमें ये पुट ऑप्शन लेते हैं ना इसकी, तो आई थिंक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं इसमें, लेकिन उन्हें कॉल ऑप्शन ली है, तो मार्केट टोटल सारा क्या नेगेटिव है, और ये भी क्या हो गया, स्टॉक भी गिर गया ऑब्वियसली, क्योंकि जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा, ओवरऑल मार्केट चाहे क्या बोलते हैं, अगर अच्छा नहीं है तो स्टॉक्स के मैक्सिमम स्टॉक्स जो है उसमें फॉल ही होंगे, मैक्सिमम स्टॉक्स के गिरने की पॉसिबिलिटी है। ये स्टॉक 3% चढ़ा है, कौन सा है, कार्बो, कार्बोजिन है, कौन सा है, कौन सा यार, इसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी, मोर ऑप्शन, नहीं स्टॉक, हाँ स्टॉक इन्फो में देखते हैं कौन सा है। ये स्टॉक आज 4% के करीब, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी राइज हुआ है। हाँ कार्बोरंडम यूनिवर्सल मिड कैप का है, तो आज ये 4% जो है, 4% से ज़्यादा ही मूव किया होगा आज। हाँ आज अच्छा मूव किया, देखो कैंडल इसकी, ठीक है सर, ये समझ आ गया आपको, हेलो, चलिए तो सेशन यहीं पे क्लोज करें आज, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वीडियो को अपलोड करने का, मेरा डेटा काफ़ी लग जाता है। तो चलिए आज हम इसको, आज का सेशन काफ़ी, और हम कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ट्रेंड को फाइंड करने के, हमारे पास ट्रेंड को ट्रेड करने की डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे हम चैनल बना लेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, पैरेलल चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल, अपवर्ड मिल के ऐसे वर्टिकल चैनल, डिफरेंट टाइप के चैनल्स हम बना लेंगे, उसके हिसाब से भी हम स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये हम इसको, हाँ नहीं, जिगजैग का ट्रेंड लाइन भी अजीब होता है, वो अलग होता है। जिगजैग का ट्रेंड लाइन जो है वो अलग सा होता है, वो मतलब उसका साफ, कई बार वो उल्टा पुल्टा चलता है, वो टोटली कंफ्यूजिंग है। जिगजैग का ये होता है कि वो लेवल को रिवर्सल का अच्छा लेवल देता है, वो मतलब किसी लेवल से रिवर्स हो रहा है वो हमें मिल सकता है, अगर हम जिगजैग को सही टाइम पे देख लें, और हमें अच्छा कोई रिवर्सल मिल सकता है कभी, ठीक है। चलिए तो आज हम यहीं पे सेशन क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट। और सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। सेशन ज्वाइन करने का क्या होता है कि हम क्या होता है कि नई नई चीज़ें, देखो डिस्कशन से ज़्यादा चीज़ें हम सीखते हैं। ओके सर, गुड नाइट।